Good morning, everyone. Today we are going to start with tenses and namely present perfect tense. We have already done simple present and present continuous tense forms. Let's first see the syntax or the structure of the tense. In affirmative sentences, the syntax is subject plus has have plus verb in third form plus object plus other words. In negative sentences, syntax is subject plus has have plus not plus verb in third form plus object plus other words. In interrogative sentences, you have to bring the auxiliary verb before the subject, which means has have plus subject plus verb in third form plus object plus other words, and of course a question mark. So this is the syntax. You need to know very clearly that has is used when the subject is singular in number and have is used when the subject is plural in number. For example, she has cleared her dues. she सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आपने यूज़ किया है हैज़. क्लियर्ड हर ड्यूज. जबकि दूसरे सेंटेंसेस में लिखा है वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट. वी प्लूरल सब्जेक्ट है, देयरफॉर यू हैव यूज्ड हैव कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट. तो हैज़ हैव हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब होता है. केवल हमको ये देखना रहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, उस हिसाब से हम इसकी चॉइस करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द यूजेस ऑफ present perfect tenses. The very first one is to refer to past situations that continue up to the present. This means कि किसी भी past situation, कोई भी past की घटना जो कि अभी तक चलती चली आ रही है, तब फिर हम उसको कहेंगे कि वो present perfect का tense से related है. या यूँ कह लीजिए कि वो पास्ट से भी रिलेटेड है और उसका अभी भी रिलेशनशिप प्रेजेंट से भी है. देयरफॉर सच इवेंट और सिचुएशन आर एग्जिस्टिंग इन प्रेजेंट, tucked up in past, and therefore perfectly in execution. So such type of tenses, the present perfect tense is said to be present tense which looks backward into the past. In fact, it is a sort of mixture of present and past. If you want to talk about an activity or a situation that began at some time in past, continued, and is still taking place now, you use the present perfect tense. Adverbial phrases like now, before, up to, the present, etc. are used with present perfect in order to refer to the past with the present time. तो ये जो adverbial phrases हैं now, like now, before, up to the present, इससे हम present perfect tense को लिख पाते हैं. The following examples illustrate what is said above. For example, all my working life I have waited for a better future. यानी मैं पूरी ज़िंदगी जब तक मैं काम करता रहा, I have waited for a better future. तो मैं जब काम करना शुरू किया था तो वो पास्ट का टाइम हो गया. अच्छा, पास्ट के टाइम से लेके अभी तक मैं वर्क भी कर रहा हूँ और वेट भी कर रहा हूँ. सो ऑल माई वर्किंग लाइफ, ये एक सिचुएशन है, ये एक्टिविटी है. आई हैव वेटेड फॉर अ बेटर फ्यूचर, दिस इज़ द लिंक टू द प्रेजेंट. और आई हैव, आई इज़ अ प्लूरल, not a person but a subject is treated as plural, therefore you have used have. आई के साथ हैज़ नहीं लगाते. देखने में आई सिंगुलर लगता है लेकिन ग्रामेटिकली हम आई और यू दोनों ही तरह के प्रोनाउंस को प्लूरल ही मानते हैं.
There are other sentences likewise. I have always felt that films should be entertaining. I have finished writing 10 pages so far today. I have never seen an octopus before. So such type of sentences you will find when you are looking into present perfect tenses. Now the second usage is to express a past action, the result of which still continues. एक तो वो एक्शन ही कंटिन्यूड था, अब दूसरे सिचुएशन में कि उस एक्शन जो हुआ था उसका कोई रिजल्ट आया और वो रिजल्ट अभी तक चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बिन इल सिंस फ्राइडे. तो बीमार हुई थी वो पहले, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी कंटिन्यूड है. तो शी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे. शी कंटिन्यूज टू बी इल इवन नाउ. ये इसका मीनिंग है. आई हैव केयर्ड फॉर हिम 7 years. तो मैंने उसका 7 साल से मैं ख्याल रख रहा हूँ, ये नहीं कि रख चुका हूँ. सो आई स्टिल केयर फॉर हिम. दिस इज द मीनिंग. थर्ड यूजेज इज टू एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट विदाउट स्टेटिंग अ स्पेसिफिक टाइम. तो तीसरी बात, जब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो हम टाइम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हुआ क्या था. So when we want to mention something that happened in past, but we do not want to state the specific time, we use present perfect tense. ये बड़ा important है कि जब भी हम कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि भाई ये हुआ था, लेकिन हम समय नहीं बताना चाहते कि कब हुआ था, तब हम इस present perfect tense का इस्तेमाल करते हैं. For example, I have read the novel, but I do not remember the details. तो मैंने नॉवल पढ़ ली है, टाइम नहीं स्पेसिफाइड है, बट आई डू नॉट रिमेंबर द डिटेल्स. आई हैव रेज्ड 5 लाख रुपीज़. मैंने 5 लाख रुपए कमाए थे फॉर एन ऑडिटोरियम. कब कमाए थे ये नहीं पता. सो टाइम इज़ नॉट मैंशनड. आई हैव नोटिस दिस ट्रेट इन मैनी आर्टिस्ट. सो आई हैव नोटिस्ड. कब नोटिस कर लिया नहीं पता. दिस ट्रेट इन मैनी आर्टिस्ट. ट्रेट मीन्स क्वालिटी. So I have noticed this quality in many artists. So likewise, the sentences can be continued. Fourth usage is to express an action that has been completed, जो कि आप सिंपल पास्ट भी समझ जाते हैं. बहुत नज़दीक होता है ये सिंपल पास्ट के. The sun has set. तो इसका मतलब हो गया कि सूरज डूब गया है. अब सन हैज़ सेट मतलब अभी अभी डूबा है, डूब भी गया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे समय में अभी गुज़रा नहीं है वो टाइम जो है अभी वो प्रेजेंट के ही आसपास है, इसलिए आप हैज़ या हैव यूज़ कर सकते. लेकिन अगर वो मान लीजिए 3-4 घंटे हो गए सूरज को सेट हुए, सन को डूबे हुए, तो इन दैट केस यू कैन से द सन हैड सेट एट 5:15 PM. तो जब भी आप थोड़ा समय में पीछे की बात करते हैं, कन्फर्मली कोई काम हो चुका होता है, तो इट बिकम सिंपल पास्ट. और अभी अभी कोई काम हो करके ख़त्म ही हुआ है, देन इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट. सो द सन हैज़ सेट. वी हैव जस्ट फिनिश्ड अवर टी. तो बहुत देर नहीं हुई है, बस अभी जैसे चाय आपने पी के कप नीचे रखा हो, तो फिर हो जाएगा कि वी हैव फिनिश्ड अवर टी. वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आपने इसमें ऑक्सिलरी हैव लगाया है. ये बात आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट यूजेज इज फॉर रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन, जो आदतन आपके एक्शंस होते हैं, तो और बार बार जो आप करते रहते हैं. तो इस तरह के एक्शंस को जब भी आप सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो टेंस की चॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट चूज़ करिए. फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंट परफेक्ट विथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फ्रीक्वेंटली, ऑफन, एंड विथ सच एक्सप्रेशन एज थ्राइस, 4 times, several times, is used to denote repeated or habitual action. For example, I have often wondered why she is so generous. मैं बहुत बार चौंक जाता हूँ कि ये सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये इतनी दयालु कैसे है.
He has practiced the game regularly and he is sure to win. तो वो प्रैक्टिस रेगुलरली करा है गेम की, इसलिए पक्का है कि वो जीतेगा. तो हैबिचुअल या रिपीटेड एक्शन जहाँ इंडिकेट करने हों, तो इट विल बी अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये बात आप फिर से देख लीजिए. आई के साथ हैव लगा है और ही के साथ हैज़. लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट यूजेजेस इन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट. जो खबरें बनती है, न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग होती है, ब्रॉडकास्ट होता है, उसमें का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, क्योंकि पहले घटना घट चुकी है लेकिन रिपोर्ट अभी तक होती जा रही है. तो उसका लिंक पास्ट से उठ करके प्रेजेंट तक कंटिन्यूड है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू पास द बिल. तो किसी बात पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, तो जो इवेंट है वो पास्ट में हुआ होगा, लेकिन अभी उसका जो लिंक है वो कंटिन्यूड है. द डिसीजन वॉज टेकन एट द कैबिनेट मीटिंग एट 11 PM. Yesterday in Prime Minister's office, a large number of sandalwood trees have been felled by notorious gangsters. So a large number of sandalwood trees plural है, इसलिए आपने लिया have और have been. Felled verb in third form by notorious gangster. He entered the protected forest through the zoo, killed one of the guards. आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ बहुत आसानी से या बहुत कैजुअली सिंपल पास्ट का यूज़ होता है. तो सिंपल पास्ट केवल थोड़ा सा समय में अगर आपको पीछे जाना है तो सिंपल पास्ट, और इमीडिएटली कोई काम ख़त्म हुआ है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट. इस तरह से आप लिखिएगा. ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसी की अभी फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपको एक दिखाऊंगी करके. सो ही एंटर्ड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थ्रू जू, किल्ड वन ऑफ द गार्ड्स एंड लेट हिज कंपेनियंस इनटू डेंस फॉरेस्ट. Now let's do a question. Fill in the blanks with present perfect or simple past forms of verbs given in the bracket. रोहित, fill in the blanks. हिंट आपको ये ब्रैकेट में दी हुई है, इसमें जॉइन लिखा है ब्रैकेट में. तो जॉइन की ही या तो प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म भरनी है या पास्ट फॉर्म भरनी है, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे. तो रोहित डैश अ प्राइवेट कंपनी एज अ मैनेजर रिसेंटली. दे dash give him a pay package of rupees 8 lakh. Before joining the present company, he dash the management that he should be given regular promotion. But now the company dash to do so. Rohit dash bracket may make up his mind to do something in this context. So this is your exercise. Chalk out your answers, and when I write the answers, you just match whether they are correct. If not, you can correct them. So here are the answers now. Just check the paragraph. Rohit has joined a private company as a manager recently. तो Rohit has joined लिखा है, ना कि joined, because the act of joining the private company has already been done. Therefore, it has to be present perfect tense. They माने company. They have given him a pay package of rupees 8 lakh. कंपनी ने 8 लाख का पे पैकेज ऑलरेडी दे दिया है, तो हैव बीन. दे प्लूरल है, इसलिए हैव लगाया. Before joining the present company, he told the management that he should be given regular promotion. Before joining the present company, he told. So this is the simple past form to be filled in. क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया था मैनेजमेंट को कि मुझे हर साल प्रमोशन चाहिए. बट नाउ द कंपनी हैज़ रिफ्यूज. अभी कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया.
तो कंपनी सिंगुलर है इसलिए हैज़ लिया है। रिफ्यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज में। तो द कंपनी हैज़ रिफ्यूज टू डू सो। फिर रोहित ने क्या किया, रोहित हैज़ मेड अप हिज माइंड टू डू समथिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो रोहित ने अपना मन बना लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड। सो लाइक दिस यू कैन सिंपली choose that the act or activity or situation has gone a little back in time or is just linked or hanging attached to the present tense. So accordingly you can choose a simple past or a present perfect form. Now let's do another exercise. Fill in the blanks putting the present perfect or simple past tense of verbs in bracket. इस तरह के सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आइए इसको कर ले। ही डैश जस्ट डैश आउट, हिंट है गो। आई डैश द कॉम्पोजिशन बट आई कांट फाइंड एन एनवलप, हिंट है राइट। हियर आर योर शूज, आई डैश जस्ट डैश देम, सो इट इज हिंट इज क्लीन। You dash the moon last night, hint is C. I dash his books when I was at school, the hint is red. I dash them very much, I hint is enjoy them very much. I dash her for 2 years, I wonder where she is, the hint is not C. We dash the bus, now we will have to walk, hint miss. The film dash, hint began, you are a little late. I can't go out to play because I dash my work, hint not finish. He dash home at 8 and dash here at 12. So first blank में leave का hint है और second में get का. So now let's start filling up the answers. First sentence में देखिए, he singular subject है इसलिए आपको लेना पड़ेगा has. तो he has just, verb की third form होगी gone. तो go जो hint में दिया है verb उसकी third form आप लिखिए. So the answer will be he has just gone out. सेकेंड सेंटेंस में आई रोट या हैव रिटन, देखिए इसमें सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट इक्वली गुड है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं. सो द आंसर कुड बी आई रोट द कॉम्पोजिशन बट आई कांट फाइंड एन एनवेलप, और इट कुड बी आई हैव रिटन द कॉम्पोजिशन बट आई कांट फाइंड एन एनवेलप. थर्ड सेंटेंस इज हेयर आर योर शूज, आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. I have just cleaned them, verb की third form. Next sentence, you have seen the moon last night, या फिर आप इसमें सिंपल पास भी लगा सकते हैं, you saw the moon last night. Next sentence, I have read his books when I was at school. So ये थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होगा क्योंकि मैंने उसकी किताबें पढ़ी हैं जब मैं स्कूल में था. I enjoyed them very much. This will be simple past. I have enjoyed them very much. 2 बार इसको यहाँ पर उचित नहीं है लिखना. So one event has to be in present perfect and other could be put in simple past in order to make your draft interesting. Next, I have not seen her for 2 years. I wonder where she is. So it will be present perfect exactly. I have not seen is verb in third form for C. I is a plural, treated as a plural subject, therefore you have used have. We have missed the bus. Now we will have to walk. So we have missed the bus. Now we will have to walk.
देखिए यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ आगे लिखा है वी विल हैव टू वॉक। जब यहाँ पे वी विल हैव है तो इसको आप देखिए, हमको ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। तो आप ये वाला जो मैंने कहा था ना, रिपीट नहीं करना है, या तो सिंपल पास्ट लीजिए या प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट आप लिख लीजिए, दिस इज़ ओके, बट दिस इज़ नॉट टू बी कंफ्यूज कि अरे हमने फिर से हैव का यूज़ कर लिया, ये फ्यूचर है। सो योर आंसर विल बी वी हैव मिस्ड द बस। द फिल्म हैज़ बिगन, यू आर अ लिटिल लेट। बिगन का जो थर्ड फॉर्म है वो है BEGUN, बिगन। द फिल्म हैज़ बिगन, फिल्म एक है इसलिए हैज़ लिया है। आई कांट गो आउट टू प्ले बिकॉज आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई कांट गो आउट टू प्ले बिकॉज आई को प्लूरल सब्जेक्ट लिया है इसलिए हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, सो इन प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म। नाउ द लास्ट सेंटेंस, he has left home at 8 and got here at 12। इसमें क्योंकि दो ब्लैंक्स है, दोनों में ही आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं और दोनों में ही आप सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं, इसलिए रिपीटेटिव ना हो जाए, आप एक में सिंपल पास्ट लगा दीजिए और एक में प्रेजेंट परफेक्ट। सो योर आंसर बिकम ही हैज़ लेफ्ट होम एट 8 and got here at 12। So this was your small little exercise which will help you in understanding present perfect tenses. Next video will be present perfect continuous tense. So goodbye for now. Keep learning. Stay blessed.